So today we are going to read the chapter 7 of class 10th. The name of the book is The Footprints Without Feet, and the name of the chapter is The Necklace. So the chapter starts with, she was one of those pretty young ladies born as if though an error of destiny into a family of clerks. तो यहाँ पे जो शी है, शी यहाँ पे एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली की लेडी है जिसका नाम है मटिल्डा, MATILDA, राइट. तो उसी की बात की गई है और यहाँ पे लिखा है बॉर्न एज इफ दो एरर ऑफ डेस्टिनी इनटू फैमिली ऑफ क्लर्क्स, बिकॉज शी वॉज अ ब्यूटीफुल लेडी, बट किस्मत ने उसको एक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न कर दिया. सो दैट वॉज अ एरर ऑफ डेस्टिनी, किस्मत की बात है, क्योंकि वो क्लर्क्स मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुई. अब नेक्स्ट लाइन है, शी हैड नो डॉरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड. डिस्टिंग्विश्ड मीन्स the one who is a rich person. So because she was born in a very low and middle class, not low but a middle class family, so she had no dowry. उस देने के लिए कोई डाउरी नहीं था उसके पास, not very rich. She was simple but she was unhappy because we already know, because she wanted to be rich, but then she was a middle class woman. Next lines, she suffered incessantly, feeling herself born for all the delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. All these things tortured, angered her. Now, all the things are revolving around her poverty only. Incessantly means continuously. वो लगातार ही दुखी थी अपनी उन चीज़ों से जो उसके पास नहीं थी. और ये जैसे उसके पास worn chairs, broken chairs were there. Her apartment was not a very good apartment, only a very short and small apartment was there. So these all the things, embarrassed her and irritated her more. अरे यार ऐसा क्यों, all these things. So one day when she was sitting with the dinner opposite to her husband, and when the husband, उघाड़ा उसने, टूटीन मीन्स ढक्कन को उघाड़ा, तो और कहा, oh the good pot pie, I know nothing better than that. She would think of elegant dinners. अब वो क्या, now she always used to think about rich dinner, rich dresses, rich luxuries of life. But जब उसके husband ने वो ढक्कन खोला सूप का खाने का, so that was normal food. So then again she was irritated. Then she had a rich friend and a schoolmate at a convent she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment. Yes. तो शी हैड अ रिच फ्रेंड जो आगे आएगी हमारी स्टोरी में, जिससे वो बाद में ये नेकलेस उधार लेगी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्विस्ट भी आएगा स्टोरी में. तो शी वॉज वेरी रिच, अगेन शी वॉज डिसअपॉइंटेड, ओ माई फ्रेंड इज सो रिच एंड आई एम सो पुअर, वाई. So one evening her husband was very elated, very happy, and he came, and the thing that happened was, we are going to read it in the next page. He got an invitation from his office, from the Minister of Public Instruction and the Ma'am George himself. So this was a very high class party and he was given the invitation. Not everyone was given the invitation, but only a selected people, and out of them he was also the one who was given the invitation. But so he gave the husband gave the invitation to the woman. See what I've got. She quickly drew out a printed card. On drew out means just open it, and she should be happy that she always wanted to be rich. और अब एक रिच पार्टी में जाने का उसको मौका मिला है, तो वो बिल्कुल अपोजिट, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, जैसे उसके हस्बैंड ने होप किया था, उसने तो बहुत गुस्से में उसको टेबल पे फेंक दिया इनविटेशन को, तो और बोला तुम क्या करूँ मैं इसका, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट. तो उसके हस्बैंड कहता है, माय डियर डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर तो जाती नहीं हो, और ये इतना सुंदर ओकेशन है, यहाँ सब जाना चाहते हैं, और कुछ सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को यहाँ जाने को मिला है, और यहाँ तुम एक बहुत ही ऑफिशियल वर्ल्ड देखने वाली हो. तो उस वाइफ ने हस्बैंड को देखा, हु इज़ द वाइफ, मटिल्डा. येस. इरिटेटेड आई से देखा, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग टू दैट, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या पहनूंगी, ये फटी हुई ड्रेस पहनूंगी वहाँ पे. ही स्टैमर्ड, अरे वो हकला गया, अब डर गया, इस तो गुस्सा आ रहा है. वाई द ड्रेस, तूने अच्छा, तो उन्होंने कहा अच्छा जो तुम ड्रेस पहनती हो ना थिएटर जाते हैं वो अच्छी है, अच्छी ड्रेस है, पहन लो उसको. वो चुप हो गया, स्टूपिफाइड हो गया, क्योंकि उसे भी पता था कि क्या मैं बेफालतू की बातें कर रहा हूँ, वो मानने वाली नहीं है. एंड डिसमे मीन्स वेरी सैड हो गया. वो भी थोड़ा शांति हो गया उसकी अपनी वाइफ को रोता हुआ देखकर. वो थोड़ा हकलाया और बोला, बात क्या है, क्या बात है भाई. तो एक बहुत ही गुस्से में, यार हटो मैं बताती हूँ क्या बात है, ऐसे गुस्से में उसकी वाइफ बोली. बट एकदम से उसकी मैंने, अरे यार, फिर धीरे से
शी कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन, मतलब उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। वैक्सेशन मतलब वरी, एंगरनेस, अशांत मन को। और उसने बहुत आराम से बोला कि मेरे पास कुछ पहनने के लिए तो है ही नहीं इस पार्टी में, ये कार्ड अपने किसी दूसरे फ्रेंड को दे दो जिसकी वाइफ मेरे से ज़्यादा अच्छी हो, उसके पास अच्छे कपड़े हो। उसके पति को बहुत दुख हुआ, तो बोला अच्छा मुझे सोच दो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम एक अच्छी ड्रेस ढूंढ लो जो सिंपल भी हो, ज़्यादा पैसे भी ना हो, तो उसे पहन के चलना। तो उसने बहुत कुछ सोचा। शी रिफ्लेक्टेड यहाँ पे रिफ्लेक्टेड मीन्स शी थॉट फॉर सम वाइल। उसने कुछ समय के लिए सोचा और सोचती रह गई। अब उसने अपने पैसे के बारे में सोचा, ड्रेस के बारे में सोचा। उसने कहा ठीक है, कम से कम की तो 400 फ्रैंक्स मुझे लगेंगे ही एक अच्छी और डिसेंट ड्रेस लेने में। अब हस्बैंड वॉज पेल, ही वॉज टेंस्ड अगैन, क्योंकि 400 फ्रैंक्स तो उसने खुद के लिए बचा रखे थे, क्योंकि उसको हंटिंग पार्टी में जाना था अगले समर फ्रेंड्स के साथ। तो अब वो क्या करे, फिर भी उसने कहा कि ठीक है वो 400 फ्रैंक मेरे, हाँ दे दूँगा। उन्होंने सोचा अपनी सेविंग में से ही मैं उसको, जो मैंने अपने लिए बचाए थे वो मैं उसको दे दूँगा, बस तुम कोशिश करना बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, द बॉल यहाँ पे अमेरिकाज में, इंग्लैंड में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बड़ी बड़ी पार्टीज़ को बॉल्स बोला जाता है। यहाँ ये दिस इज़ नथिंग लाइक अ राउंड बॉल, दिस इज़ अ पार्टी। सो जब पार्टी आई धीरे धीरे तो वो और नाराज़ हो गई और एंग्शियस हो गई। उसकी ड्रेस तो रेडी थी, नाउ व्हाट इज़ द मैटर। अब मैटर उसके हस्बैंड ने फिर से पूछा, व्हाट्स द मैटर विद यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम 2-3 दिन से शांत नहीं लग रही है, ड्रेस तो आ गई है, नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद यू। शी रिप्लाइड कि अब मेरे पास कुछ, अच्छा ड्रेस तो आ गया, मेरे पास कुछ नेकलेस ज्वेलरी तो है ही नहीं, अब विदाउट ज्वेल आई कैंट गो। अब ड्रेस पहन ली, कुछ ज्वेलरी नहीं पहनी तो मैं पुअर लगूंगी। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, कुछ फूल पत्ती का नेकलेस बना लो, अच्छा लगेगा। शी वॉज नॉट कन्विंस, अरे यार क्या बातें कर रहे हो, ऐसे कह के उसने मना कर दिया। तो उसके हस्बैंड ने उसे बात याद दिलाई, हाउ स्टूपिड वी आर, अरे यार हम कितने बेवकूफ़ है। तुम्हारी एक अमीर फ्रेंड है ना फर्स्ट ईयर, उससे पूछो तुम्हें कुछ ज्वेलरी दे देगी। उसने कहा हाँ यार एक अमीर फ्रेंड तो है जो मेरे साथ कॉन्वेंट में भी पढ़ती थी, आज तक तो मैं दुखी थी उसकी अमीरी से, चलो आज वो शायद मेरी मदद कर दे। तो द नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू अ फ्रेंड, वो खुद को लेके गई, मतलब वो गई अपने फ्रेंड के घर, उससे बोला कि प्लीज़ लेट मी शो सम ज्वेल्स, कैन यू, आई वांट टू गो इनटू अ बॉल, अ पार्टी। तो उन्होंने बोला चूज़ माय डियर, ये उसकी फ्रेंड ने बोला कि हाँ बिल्कुल आप चूज़ कर लो। तो उन्होंने बहुत सारे ब्रेसलेट्स देखे, मोती देखे, पर्स देखे, गोल्ड देखे, वर्कमैनशिप का काम देखा। वर्कमैनशिप का काम मतलब बहुत कारीगरी कर देखी उसके ज्वेल्स पर, बट उसे कुछ पसंद नहीं आया। उसने कहा तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, हैव यू नथिंग मोर। तो उन्होंने बोला क्यों है खुद देखो ना, इतना सब कुछ पड़ा है, जो अच्छा लगे ले जाओ। तो उसने देखा बैक साटिन बॉक्स में एक बहुत ही सुंदर डायमंड का नेकलेस था। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट। ओह माय गॉड, आप खुद सोचो, जो मतलब एक आर्टिफिशियल सेट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, उसे डायमंड का सेट मिल जाए तो हर हैंड्स वर शेकिंग। उसने अपने गले पे रखा और बहुत सुंदर लगा था। एस्थेटिक अब स्पेलिंग देखिए यहाँ पे ECS, ये तो एक्सेस हो गया, बट इसे बोलते हैं एस्थेटिक है। एस्थेटिक में शी वॉज वेरी एस्थेटिक, शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी। जब आपके 90% मार्क्स आते हैं, 95, 99, तो यू आर वेरी एक्सेटिक, यू आर वेरी हैप्पी। तो उन्होंने उससे पूछा क्या ये वाला ले लूँ मैं, कैन यू लेंड मी ओनली दिस। तो उन्होंने कहा हाँ वाई नॉट, ले लो। तो ये जो लाइन है वाई, यस सर्टेनली, हाँ क्यों नहीं, हाँ पक्का। ये किसने बोला था, मटिल्डा ने या उसकी फ्रेंड फॉरेस्टियर ने, यस फॉरेस्टियर ने बोला था। अब क्या हुआ था, शी फेल अपॉन द नेक ऑफ फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर। अब वो गले लग गई। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड की गर्दन पे गिर गई, मतलब वो अपने फ्रेंड के गले लग गई। अब उसका फंक्शन का दिन आया और सबसे सुंदर लॉयसेल ही लग रही थी। लॉयसेल कौन है, मटिल्डा का ही सरनेम है, तो मटिल्डा लॉयसेल सबसे सुंदर लग रही थी, सबसे एलिगेंट, अच्छी सुंदर, हंसी हुई, खुशी के साथ। सारे लोग उसको देख रहे थे, उसका नाम पूछ रहे थे, उसको जानना चाहते थे, उसको अपना नाम बताना चाहते थे। उसने बहुत अच्छे से डांस किया, इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लेजर, मतलब पागल हो गई थी खुशी से, बिना पिए ही उसको चढ़ गई थी खुशी वाली। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर। अब वो क्या हुआ था, वो इतनी खुश हो गई कि वो 3-4 लेडीज़ के साथ पूरी रात शी वर डांसिंग, प्लेइंग गेम, मज़े कर रही थी। अब उन लेडीज़ के हस्बैंड और इसका हस्बैंड जाके कॉर्नर में सो गए कि हमारी वाइफ तो नाच वाच रही है तो हम सो जाते हैं। अब सुबह के 4 बज गए, हर हस्बैंड उठा, वो अपनी वाइफ को लेकर जाने लगा। तो अमेरिका में एक ट्रेडिशन होता है कि जब भी आप पार्टी से जाओ, एक कुछ फ़र लपेट लो अपने ड्रेस के आसपास, देखा ना फ़र वो मोटे अच्छे।
अब इसके पास वो फर था नहीं, तो इसके हस्बैंड ने एक पतला सा ही मोडेस्ट रैप, छोटा सा वो हल्का फुल्का लाए थे, फर वर तो था नहीं, तो उसी को लपेट लिया। अब उसकी वाइफ को लगा कि ओ माय गॉड, अब ये देखना ले कि अभी तो इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस पहनी थी और इसके पास फर भी नहीं है, तो भागने लग गई कि चलो चलो घर चलो। लॉयसेल डिटेन्ड है, लॉयसेल उसका पति है, उसने कहा रुक जाओ, मैं एक कैब बुला लेता हूँ, बट उसने सुना ही नहीं, क्योंकि अगर कैब बुलाने के रुकते तो लोग देख लेते उसके पास कोई फरवर नहीं है, उसके पास तो कपड़ा ही है हल्का सा। तो वो स्ट्रीट में चले गए, उन्हें कुछ मिला नहीं, वो इधर उधर देखने लग गए। तो आप इस पेज पे देखेंगे, इस पेज को पढ़ेंगे तो यही था, वो उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला। वो घर पहुँचे, अब घर पहुँच के उसे याद आया उसके पति को 10 बजे तक, देखो 4 बजे उठ गए थे वो, 4 बजे से सारा वो भाग गए फिर वहाँ से, तो 10 बजे कहाँ भाग गए, घर वर जा रहे थे, 4 बजे तक पार्टी कर रहे थे। 4 बजे उसके हस्बैंड ने उसको एक मॉडेस्ट कपड़ा पहनाया, ऊपर से ढकने का जो ट्रेडिशन होता है, तो सबके पास गोल्डन फर था, उसने कहा कि मेरे पास है नहीं तो हम भाग रहे हैं। तो सुबह के 4 बजे थे और 10 बजे उसके पति को ऑफिस जाना था। तो वो घर पहुंची, उसने अपना वो रैप हटाया उसकी ड्रेस से, उसने देखा कि वो और वो रोई, सडनली शी अटर्ड अ क्राई, एकदम से वो बहुत तेज चिल्लाई घर जाकर। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, अब उसका नेकलेस, वो डायमंड का नेकलेस खो गया था। अब यहाँ डायलॉग्स है, येस आई फील दैट एज वी केम आउट, बट इफ वी आर लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट इन